Hello students, this is your Shashank sir and today we are at Art Learning's Day 25 of Revision Program और Day 25 में आपको दो पेपर्स जा रहे हैं. एक है Microbes in Human Welfare which is the part 1 of the lecture and दूसरा है Ecosystem. ठीक है, right? Now the idea behind this is कि Microbes in Human Welfare आपने बहुत प्रैक्टिस करके रखा ही है. छोटा सा टॉपिक है. Expected questions in NEET 2026 आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 1 to 2 क्वेश्चंस. ठीक है, तो इसको मैंने इकोसिस्टम के साथ क्लब कर दिया है. ठीक है, छोटा सा चैप्टर है बट हाँ यहाँ पे मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन आने का सबसे ज़्यादा चांसेस है. करेक्ट, बिकॉज यू हैव साइंटिफिक नेम्स इन्वॉल्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक क्विक रिविजन देते हैं. ठीक है, लाइन टू लाइन है, एज वी वर डूइंग लाइन टू लाइन है. एक एक लाइन आपका यहाँ पे एनसीईआरटी का है, राइट. एक एंड जो भी क्वेश्चन आता है इसी से आएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट इज कि हाउ वुड यू डिफाइन माइक्रोब्स. आप माइक्रोब्स को कैसे डिफाइन करते हो? हाउ वुड यू डिफाइन माइक्रोब्स? सो व्हेन वी से राइट ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायन्स. ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायन्स which can be observed through what? Which can be observed through compound microscope. आप open eyes या फिर naked eyes से नहीं देख सकते. ठीक है, which can be observed through compound microscopes and are present हर जगह, wherever imagine, and are present right in air, water, land, gut यानी हमारे intestines, thermal vents, deserts, polar areas etc. These type of organisms are called as microbes. These type of organisms are called as microbes. So by definition जिस organisms को आप नहीं देख सकते और जो organisms every imagine possible areas में आपको मिलेगा, that is your microbes. ठीक है, so again organisms such as bacteria, fungi, protista, protozoa, virus, viroids, prions which cannot be observed through naked eyes but can be observed through compound microscope and are present कहाँ पे? Air, water, land, gut, thermal vents, desert areas, polar areas etc. are said to be microbes. Are said to be microbes. Clear है? ठीक है, right. Now the next important question is can these microbes be cultured? क्या आप इस माइक्रोब्स को कल्चर कर सकते हो? ठीक है, बिकॉज कल्चरिंग माइक्रोब्स इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर स्टडीज, है कि नहीं है? right. Now microbes can be cultured right, such as bacteria and fungi. They can be grown in an artificial medium. So microbes such as bacteria and fungi can be grown in an artificial medium. और जब वो ग्रो करते हैं, ठीक है, उनके जो कॉलोनीज बनते हैं या फिर फंगल हाइफे जो बनते हैं, that can be observed through naked eyes. ठीक है, right. So microbes can be cultured or grown in artificial medium. Those microbes include bacteria and fungi, and when they grow, bacterial colonies, fungal hyphae, that can be observed through naked eyes. ठीक है, so ये इसका basic definition था. करेक्ट है. Now the most important thing कि इसका application कहाँ पे आता है. So microbes का application आपके household products में आता है, माइक्रोब्स का एप्लीकेशन आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आता है, माइक्रोब्स का प्रोडक्शन, माइक्रोब्स का यूटिलाइजेशन आपको इंपॉर्टेंट केमिकल्स, एसिड, मेडिसिन्स इसमें भी देखता है. ठीक है, सो हमारे एनसीईआरटी में सर्टेन एरियाज वेयर द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स आर देयर लिस्ट आउट किया है, जिसमें इंपॉर्टेंट हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स है, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, राइट, एंड सर्टेन एसिड्स एंड केमिकल्स हैं. ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ द हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रोब जो यूज होता है दैट इज योर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. नाउ दिस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, राइट, these are a group of bacterial species. Very important, you have to remember these are a group of bacterial species, not one. ये एक माइक्रोब नहीं है, एक ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स है. ठीक है, these are a group of bacterial species which include lactobacillus है and others. So lactobacillus, there is lactobacillus, but there are also other microbes that are present. ठीक है, and they can convert what? They can convert milk into curd. So the first important utilization of microbes in household products is the formation of curd from
मिल्क। तो इसमें कौन आता है, इसमें आता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जिसमें कौन आता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। सो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया व्हिच इंक्लूड्स लैक्टोबैसिलस एंड अदर्स कैन कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, राइट। दे जस्ट डिफर इन देयर वर्किंग टेम्परेचर। सबका अलग अलग इफेक्टिव टेम्परेचर रहता है जिसमें आप काम कर सकते हो, ठीक है, राइट। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म, व्हाट इज द मैकेनिज्म? पहले तो हमको यह जानना है कि द मिल्क इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, इट इज कंपोज्ड ऑफ फैट। 3 कंपोनेंट्स है मिल्क में। आपका वाटर है, मिल्क में आपका प्रोटीन है, मिल्क में आपका फैट है, ठीक है। नाउ मिल्क इज एन इमल्शन, मिल्क इज एन इमल्शन, ये आपको ध्यान रखना है। मिल्क इज एन इमल्शन वेयर द प्रोटीन होल्ड्स द वाटर एंड फैट टुगेदर, वेयर द प्रोटीन holds the water and fat together and it acts as an emulsifier। ये एक emulsifier की तरह काम करता है, ये जोड़ता है, राइट। सी वाटर एंड फैट यानी वाटर और लिपिड, ये तो कभी मिक्स नहीं होगा, लेकिन अगर मैं उसमें प्रोटीन डाल दूं सो आई कैन होल्ड द वाटर एंड लिपिड कंपोनेंट या फिर वाटर और फैट कंपोनेंट टुगेदर, ठीक है, राइट। सो मिल्क इज एन इमल्शन वेयर प्रोटीन होल्ड्स द वाटर एंड फैट टुगेदर, करेक्ट है। नाउ वाटर में आपको शुगर लैक्टोज मिल जाएगा, प्रोटीन क्या है, केजिन है, मिल्क प्रोटीन, एंड देयर इज फैट। नाउ व्हाट डज द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डू? द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट्स द शुगर इनटू एसिड। द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट्स द शुगर इनटू एसिड, और जब ये एसिड बन जाता है, दिस एसिड पार्शियली डाइजेस्ट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में दे देता है, पार्शियली डाइजेस्टेड, कंप्लीटली डाइजेस्टेड। सो एसिड जब बनता है, इट पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, ये मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है, एंड पार्शियली डाइजेस्ट करने के बाद दैट मिल्क प्रोटीन फॉर्म्स अ कोआगुलम, वो कोआगुलेट हो जाता है, ठीक है, ये कोआगुलेट हो जाता है, व्हिच अल्टीमेटली इज द कर्ड, व्हिच अल्टीमेटली इज द कर्ड। समझ में आया, करेक्ट है। सो टू मैकेनिज्म ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वर्किंग टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, क्या है, मिल्क में आपका 3 कंपोनेंट है, आपका वाटर है, आपका प्रोटीन है, आपका फैट है। सिंस मिल्क इज एन इमल्शन, द प्रोटीन होल्ड्स द वाटर एंड फैट टुगेदर, राइट। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, वाटर कंपोनेंट में जो लैक्टोज शुगर होता है उसको एसिड में कन्वर्ट करता है। दैट एसिड पार्शियली डाइजेस्ट, कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं, पार्शियली डाइजेस्ट दी आपका केजिन प्रोटीन, and that causes the coagulation and which is ultimately the curd। समझ में आया? So this is the formation of the curd, this is the formation of the curd, ठीक है। इसका यूटिलाइजेशन क्या है, राइट, ठीक है, इसका यूटिलाइजेशन कर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इंक्रीजेस द विटामिन B12 कंटेंट ऑफ द बॉडी, इट इंक्रीजेस द विटामिन B12 कंटेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और आपको मालूम है विटामिन B12 रहने से आपका रेड ब्लड सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है, ठीक है, राइट, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। विटामिन B12 फॉलिक एसिड चाहिए होता है, सो कर्ड इंक्रीजेस द विटामिन B12 कंटेंट ऑफ द बॉडी। इट आल्सो हेल्प्स टू चेक द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन द गट, राइट, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन दी गट, ठीक है। तो पेट में आपके बॉडी के अंदर में जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होता है उसको भी इसका ग्रोथ कंट्रोल करता है। जो कर्ड है, कर्ड में जितना भी बैक्टीरिया है जिसको हम लोग गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है, दैट हेल्प्स इन चेकिंग द डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन द गट, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आपका इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा है, ठीक है, राइट। सो इट एक्ट्स एज अ प्रोबायोटिक which keeps your gut healthy, which keeps your gut healthy, clear है। so this is the functions, तो 2 function important function है, it increases the vitamin B12 content in the body, it helps to check the growth of the disease causing microbes and thus keeps the gut healthy, ठीक है, राइट। अच्छा, आप अगर थोड़ा सा कर्ड, थोड़ा सा जो फ्रेशली फॉर्म कर्ड है उसमें से थोड़ा सा कर्ड लेके एक अगर मिल्क में आप दे दो, ठीक है, अगर मिल्क में दे दो, द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज फास्टर। ये जो हमने थोड़ा सा कर्ड लेके जो मिल्क में दिया टू फॉर्म न्यू कर्ड, दैट इज कॉल्ड एज द इनाकुलम, ठीक है। दैट इनाकुलम इट इज अ स्टार्टर जहां पे आप मिल्क के साथ क्या देते हो, कर्ड, जिसमें लाख्स ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। तो वहां पे कर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है, क्लियर है, समझ में आया। सो दिस वाज द फर्स्ट हाउस होल्ड प्रोडक्ट, राइट, यूजिंग अ बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हम लोगों का फर्मेंटेशन, नेक्स्ट आता है हम लोगों का
फर्मेंटेशन, ठीक है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, एक आपका क्या है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जहां पे देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन। एक है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जहां पे देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन, एंड दूसरा जो हमको ज्यादा चाहिए होता है द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। करेक्ट है, द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। नाउ व्हाई दिस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन इज नेसेसरी? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन इज नेसेसरी बिकॉज जो पफी एफरेंस या फिर जो एफरवेंस होता है किसी भी फूड में या फिर किसी भी ड्रिंक में, पफी एफरेंस ऑफ द फ्रूट एंड द ड्रिंक का जो एफरवेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो आपका कार्बोनेटेड होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, राइट, तो आपका फूड पफी होगा, और अगर आपके ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो ज्यादा फिजी होगा, राइट, एफरवेंस देता है, ठीक है। सो फर्मेंटेशन ऑफ द CO2 प्रोडक्शन जहां पे होता है, द पफी एफरेंस ऑफ फूड प्रोडक्ट इज गारंटीड, ठीक है। नाउ इसका यूटिलाइजेशन कहां पे होता है फर्मेंटेशन में? फर्मेंटेशन तो इडली डोसा बनाने में, बेकरी में, टॉडी में, ठीक है, फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट बनाने में, ठीक है। तो इडली डोसा मेकिंग में द डो, जो आटे का गोंद होता है या फिर जो भी गोंद होता है, राइट, चावल का भी हो सकता है, आटे का भी हो सकता है, जिसका भी गोंद होता है, राइट, सो द डो इज फर्मेंटेड। इफ आई एम मेकिंग इडली एंड डोसा, द डो इज फर्मेंटेड बाय अ बैक्टीरिया, द डो इज फर्मेंटेड बाय अ बैक्टीरिया। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। लेकिन अगर मैं बेकरी प्रोडक्ट बना रहा हूं सच एज ब्रेड, राइट, द डो इज फर्मेंटेड बाय यीस्ट, द डो इज फर्मेंटेड बाय यीस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो इडली डोसा में अगर मैं फर्मेंटेशन कर रहा हूं, दैट इज फर्मेंटेड बाय हुम? बैक्टीरिया। अगर मैं बेकरी प्रोडक्ट में फर्मेंटेशन कर रहा हूं, इट इज कॉज्ड बाय एन यीस्ट, एंड द मोस्ट कॉमन यीस्ट इज व्हाट, जो इसमें यूटिलाइज होता है, दिस इज सैक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई, दिस इज सैक्रोमाइसिस सेरेवेसियाई। क्लियर है? क्लियर है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ जाता है। देयर आफ्टर यू हैव टॉडी, इट इज अ फर्मेंटेड ड्रिंक फ्रॉम साउथ इंडिया, जो सैप ऑफ द पाम टी, सैप ऑफ द पाम टी को कलेक्ट करते हैं, उसको रखते हैं 2-3 दिन, वो फर्मेंट हो जाता है, सो वो टॉडी होता है, फर्मेंटेड ड्रिंक। अपार्ट फ्रॉम दैट फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट आर यूटिलाइज्ड। फर्मेंटेड प्रोडक्ट खाने से क्या होता है, व्हाट इज द यूटिलाइजेशन? सी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स अल्टीमेटली क्या है, सेमी पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स ही रहते हैं, ठीक है। तो इजी डाइजेशन भी होता है, इट इज इजी फॉर अस, इस डाइजेशन में इजी भी होता है, ठीक है, राइट, एंड उसको एब्जॉर्ब करने में, बॉडी को उसको एब्जॉर्ब करने में टाइम भी नहीं लगता है। क्लियर है? सो दिस इज द फर्मेंटेड प्रोडक्ट इन हाउस होल्ड गुड। नेक्स्ट आप गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, राइट। नाउ दिस इज मेड बाय, अभी चीज क्या है, दिस इज ऑल्सो ए मिल्क प्रोडक्ट, बट इट इज मेड बाय डीनेचरिंग। इसको डीनेचर मतलब खराब कर देते हैं, किसको? प्रोटीन। Remember when we were making curd, we were partially digesting the milk protein. Milk protein तो था, उसको partially digest किया था। यहाँ पे प्रोटीन को हम लोग डीनेचर ही कर रहे हैं, इसको तोड़ ही दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं है? We don't require the protein. And if you remember, milk was an emulsion, protein was the emulsifier. प्रोटीन क्या कर रहा था? मिल्क और जो वाटर है और जो फैट है इसको पकड़ के रख रहा था। अगर आप प्रोटीन को डीनेचर कर दोगे, अगर प्रोटीन को वहां से हटा दोगे, तो आपका फैट और वाटर क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, है कि नहीं है? एग्जैक्टली द थिंग दैट वी यूटिलाइज हियर, कि इट इज मेड बाय डीनेचरिंग द प्रोटीन, ठीक है। हम लोग अगर उस मिल्क में थोड़ा सा पीएच चेंज कर दे, जो प्रोटीन रहता है वो खराब हो जाता है। द प्रोटीन इज डीनेचर्ड, प्रोटीन क्या हो जाता है? डीनेचर्ड। मिल्क में अगर हम लोग पीएच चेंज कर देते हैं, द प्रोटीन इज डीनेचर्ड एंड द वाटर एंड द फैट दे सेपरेट, ये सेपरेट हो जाता है, ठीक है, दे सेपरेट, द वाटर एंड फैट दे सेपरेट, एंड वंस द वाटर एंड फैट इज सेपरेटेड वी रिमूव द वाटर। और जो हम लोग फैट कलेक्ट करते हैं ना, जब वाटर और फैट सेपरेट हो जाता है, आप वाटर को रिमूव कर दो, जो फैट हम लोगों ने कलेक्ट किया वो क्या बन गया? इंडियन टर्म में, इंडियन हाउस होल्ड में आपने बना लिया क्या? पनीर। आपने क्या बना लिया? पनीर, ठीक है ना। उसी पनीर में या फिर उसी जो फैट जिसको आपने सेपरेट किया, अगर आपने उसमें बैक्टीरिया और फंजाई ऐड कर दिया, रिक्वायर्ड बैक्टीरिया और फंजाई, व्हाट यू मेक इज द चीज, व्हाट यू मेक इज द चीज।
इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चीज, नथिंग एल्स। आपने मिल्क प्रोटीन को डीनेचर किया, मिल्क प्रोटीन को डीनेचर करते करते वाटर एंड फैट गॉट सेपरेट, अपने वाटर को रिमूव कर दिया, फैट कंटेंट बच गया आपके पास, उसी में आपने बैक्टीरिया फिर फंजाई ऐड किया, आपने क्या बना दिया, चीज, राइट। नाउ बैक्टीरिया और फंजाई ऐड करने में होता क्या है, वंस यू ऐड बैक्टीरिया एंड फंजाई, द फ्लेवर, द टेस्ट एंड द टेक्सचर वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। द फ्लेवर, द टेस्ट एंड द टेक्सचर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई यूज्ड, द टाइप ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई यूज्ड, क्लियर है। तो इसी का एग्जांपल हमारे बुक में दो टाइप ऑफ चीज देके रखा है, एक बोला है स्विस चीज और एक बोला है रॉकफोर्ट चीज। द स्विस चीज इज मेड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, whereas the Roquefort cheese is made with the help of a fungi, correct है। Swiss cheese made with the help of bacteria, Roquefort cheese made with the help of fungi. What is the bacteria? Propionibacterium shermani. बैक्टीरिया क्या है, Propionibacterium shermani, और फंजाई क्या है, Penicillium roqueforti. So the bacteria Propionibacterium shermani is utilized to make Swiss cheese, and the fungi Penicillium roqueforti is utilized to make Roquefort cheese. What is the difference, right? In case of Swiss cheese, यहाँ पे जो होल्स होता है, चीज के अंदर में जो होल्स होता है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बिकॉज ऑफ large amount of carbon dioxide being produced, whereas in the Roquefort cheese the holes are small because less amount of carbon dioxide is being produced. क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो ये तो था हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ माइक्रोब्स इन दी हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स, इन दी हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। अगर अब हम लोग आते हैं थोड़े इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, राइट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हमको क्या है, राइट, द माइक्रोब्स कैन बी यूज्ड टू मेक अल्कोहलिक बेवरेजेस, they can be used to make antibiotics, there are certain utilization of some chemicals, enzymes and acids, ठीक है, right। So coming with the alcoholic beverages, right, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, फर्मेंटेशन करना पड़ेगा, किसके साथ, यीस्ट के साथ। स्पेसिफिक यीस्ट कौन है, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces cerevisiae। अंडर व्हाट कंडीशन, अंडर एनाएरोबिक कंडीशन, अंडर एनाएरोबिक कंडीशन, ठीक है। तो एनाएरोबिक कंडीशन करने के साथ साथ क्या होता है, आप यीस्ट के साथ फर्मेंटेशन कर रहे हो, आप यीस्ट के साथ फर्मेंटेशन कर रहे हो, आइडिया क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा। बट अगर आपने कंडीशन चेंज कर दिया, एरोबिक से क्या चेंज कर दिया, एनाएरोबिक, पूरे एनाएरोबिक कंटेनर में आप कर रहे हो, तो क्या होता है, देयर इज इंक्रीज इन दी इथेनॉलिक कंसंट्रेशन, देयर इज इंक्रीज इन दी इथेनॉलिक कंसंट्रेशन, इथेनॉल कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, राइट, ठीक है। सो दैट इज व्हाई Saccharomyces cerevisiae इज आल्सो कॉल्ड एज दी ब्रूअर्स यीस्ट, इसको क्या बोलते हैं, ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ द टाइप ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज, आप कौन सा टाइप ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज बनाते हो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट वुड डिपेंड अपॉन आपने क्या बेस यूज किया है, और दूसरा वेदर इट इज डिस्टिल्ड और अनडिस्टिल्ड, ठीक है, ठीक है। सो बेस क्या बना सकते हो, बेस आप ग्रेप्स ले सकते हो, सीरियल्स ले सकते हो, शुगर केन जूस ले सकते हो, वट एवर इट मे बी, ठीक है। आप ग्रेप्स ले सकते हो, सीरियल्स ले सकते हो, शुगर केन जूस ले सकते हो। इंपॉर्टेंस कहां पे आता है अल्कोहलिक बेवरेज का, वेदर इट इज डिस्टिल्ड और अनडिस्टिल्ड, वेदर इट इज डिस्टिल्ड और अनडिस्टिल्ड, ठीक है। अभी डिस्टिल्ड और अनडिस्टिल्ड में क्या होता है, अनडिस्टिल्ड वाले सच एज बियर एंड वाइन, अनडिस्टिल्ड वाले सच एज बियर एंड वाइन, इसमें अल्कोहलिक कंसंट्रेशन लो होता है, जितना अल्कोहलिक कंसंट्रेशन होना चाहिए उससे कम होता है, ठीक है। इफ यू आर अनडिस्टिल्ड, अगर आपका जो अल्कोहलिक बेवरेज है वो अनडिस्टिल्ड है, इसमें अल्कोहलिक कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। Whereas अल्कोहलिक बेवरेजेस सच एज व्हिस्की, ब्रांडी, रम, व्हिस्की, ब्रांडी, रम, राइट, ये डिस्टिल्ड है, तो इनमें क्या होता है, इनमें अल्कोहलिक कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, अल्कोहलिक कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, राइट। सो द टाइप ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस इट डिपेंड्स अपॉन द बेस यूज्ड, आप ग्रेप्स यूज करो, आप सीरियल्स यूज करो, आप शुगर केन यूज करो, राइट। बट मेजर डिफरेंस कहां पे आएगा, वेदर इट इज डिस्टिल्ड और अनडिस्टिल्ड। अनडिस्टिल्ड होने से अल्कोहलिक कंसंट्रेशन हमेशा लो होता है, डिस्टिल्ड होने से अल्कोहलिक कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होता है। अनडिस्टिल्ड वाले अल्कोहलिक बेवरेज का बुक में क्या क्या एग्जांपल देके रखा है, बियर एंड वाइन, वेयरएज डिस्टिल्ड का क्या क्या एग्जांपल देके रखा है, व्हिस्की, ब्रांडी एंड रम, क्लियर है, ओके, ठीक है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ द 20th सेंचुरी, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स कौन से टर्म से आया, ग्रीक टर्म से आया, ठीक है, ग्रीक टर्म से एंटी व्हिच मींस अगेंस्ट,
एंड बायोटिक व्हिच मींस लाइफ, अगेंस्ट लाइफ। लेकिन ये अगेंस्ट लाइफ किसके है? ह्यूमंस के अगेंस्ट है? नहीं, ह्यूमंस के लाइफ के अगेंस्ट में जो लाइफ खड़ा हुआ है उसी को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स है। सो इट इज अगेंस्ट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स which causes harm to the humans, ठीक है। so antibiotics are chemicals that inhibit or retard the growth, inhibit or retard the growth of disease causing microbes and pathogen, ठीक है। antibiotics are chemicals that inhibit or retard the growth of disease causing microbes or pathogen, clear है, ठीक है। it was discovered by whom? it was a chance discovery by अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये चांस डिस्कवरी किया था, ठीक है, व्हाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस। किसमें? स्टेफाइलोकोकस। उसने क्या देखा कि जब वो स्टेफाइलोकोकस से काम कर रहा था, करेक्ट है, राइट, ही सॉ सम मोल्ड ग्रोइंग ऑन द कल्चर्ड मीडियम दैट इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, क्लियर है। वो जब वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को स्टडी कर रहा था, उसने नोटिस किया इन सर्टेन पेट्री डिशेस देयर वर सम मोल्ड्स ग्रोइंग, ठीक है, और जहां जहां पे वो मोल्ड्स था उसके आसपास में जितना भी बैक्टीरियल कॉलोनीज थे सब मर चुके थे, देयर वर नो बैक्टीरिया प्रेजेंट। तो जब उसने उस मोल्ड का कैरेक्टराइजेशन किया तो उसमें क्या निकला? दैट इट वाज अ फंजाई पेनिसिलम नोटाटम, ठीक है, पेनिसिलम नोटाटम, करेक्ट है, एंड इट सीक्रेटेड द एंजाइम पेनिसिलिन, राइट, ठीक है। लेकिन हाउ द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द पेनिसिलिन या फिर द वर्किंग मैकेनिज्म of how the antibiotics work was established by Ernst Chain and Howard Florey. It was established by Ernst Chain and Howard Florey. So the working mechanism of the antibiotic, how it was working, it was utilized by Ernst Chain and Howard Florey. तो इसीलिए in 1945 इन तीनों को, चेन, फ्लोरे और फ्लेमिंग को क्या मिल गया? नोबेल प्राइज मिल गया, ठीक है, नोबेल प्राइज मिल गया, करेक्ट है, ओके, राइट। नाउ सम ऑर्गेनिक एसिड्स, सम केमिकल्स, एसिड्स एंड एंजाइम्स जिसमें हम लोग यूटिलाइज करते हैं माइक्रोब्स को, ठीक है। साइट्रिक एसिड, एस्परगिलस नाइजर, जिसको इससे आता है फंगस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पूरा याद रखिएगा, ठीक है। नाउ साइट्रिक एसिड, एस्परगिलस नाइजर, फंगस। एसिटिक एसिड, एसिडोबैक्टर एसिटी व्हिच इज अ बैक्टीरिया। ब्यूटाइरिक एसिड, कौन? कॉल्स्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, इट इज अगेन अ बैक्टीरियम, ठीक है। लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस, अगेन ए बैक्टीरिया। एंड इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए मेरे को क्या चाहिए? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, दैट इज अ यीस्ट, ठीक है, राइट, एकदम। साइट्रिक एसिड है ऑर्गेनिक एसिड्स में, एसिटिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, राइट, एंड आपको इथेनॉल देके रखा है, करेक्ट है। साइट्रिक एसिड किससे मिल रहा है? एस्परगिलस नाइजर व्हिच इज अ फंगस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइट्रिक एसिड, एस्परगिलस नाइजर व्हिच इज अ फंगस। एसिटिक एसिड, एसिडोबैक्टर एसिटी, एसिटिक एसिड किससे मिलता है? एसिडोबैक्टर एसिटी व्हिच इज अ बैक्टीरिया। ब्यूटाइरिक एसिड किससे मिलता है? कॉल्स्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाइरिक एसिड किससे मिलेगा? कॉल्स्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम व्हिच इज अ बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड किससे मिलेगा? लैक्टोबैसिलस, अगेन इट इज अ बैक्टीरिया। एंड इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए इन लार्ज स्केल मेरे को चाहिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसी व्हिच इज अ यीस्ट, ठीक है। तो ये था ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। Then there are certain enzymes that can be used. Enzymes such as, पहला क्या है? Lipase. Lipase it is used in detergents, oil stain removal में आता है, and it is also produced by microbes. It is also produced by microbes. फिर क्या आता है? Pectinase. Pectinase and तीसरा क्या है? Proteases. So pectinase and proteases it is used for clarifying bottle juices. बॉटल जूस, फ्रूट जूसेस में जो फ्रूट जूस का जितना भी उसका जो फाइबर्स रहते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए मेरे को पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज चाहिए। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे, स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस इसको प्रोड्यूस कौन करता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। प्रोड्यूस कौन करता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। इट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड, यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर। किसमें यूज करते हैं? क्लॉट बस्टर, करेक्ट है। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स जिसमें हार्ट अटैक हुआ हो, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुआ हो, करेक्ट है। सो स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस्ड बाय हुम? स्ट्रेप्टोकाइनेस इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। वो क्या करता है? इट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंड यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर का काम क्या है? रिमूव क्लॉट। कहां पे? पेशेंट्स हैव व्हिच हैव अंडरगॉन हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है। अभी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए
किसने प्रोड्यूस किया? ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पेरम। किसने प्रोड्यूस किया? ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पेरम। इट इज अ फंगस, इट इज अ फंगस. So cyclosporin A, which is produced by Trichoderma polysporum, which is a fungus. It is used as a immunosuppressant. immunosuppressant organ transplant जब करोगे तब ये आप अपने पेशेंट्स में दोगे. समझ में आया? Cyclosporin A produced by Trichoderma polysporum, which is a fungus, right? And it is used as a immunosuppressant in patients which are going organ transplantation. एंड लास्टली इस पार्ट में क्या आएगा आपका? इस पार्ट में आएगा आपका स्टैटिन्स, राइट? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मोनास्कस परप्यूरियस. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिन्स प्रोड्यूस्ड बाय मोनास्कस परप्यूरियस, या फिर दिस इज यीस्ट, ठीक है? एंड इसमें क्या करता है? इट इज यूज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, थिनिंग, ब्लड थिनर. देखना अगर आपके घर में कोई भी अगर ब्लड थिनिंग मेडिसिन खाता है तो वो मेडिसिन का एंडिंग में स्टैटिन लिखा हुआ रहता है. समझ में आया? करेक्ट है. सो स्टैटिन्स दिस आर प्रोड्यूस्ड बाय मोनास्कस परप्यूरियस. दिस इज यीस्ट, ठीक है? इट इज यूज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. दे एक्ट, ये कैसे इंपॉर्टेंटली एक्ट करता है? दे एक्ट बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस. कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बनाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए उसके साथ ये कंपीट कर लेता है. ठीक है? क्लियर है? राइट? सो दिस आर द सर्टेन यूटिलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स और माइक्रोब्स प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स इन आवर बॉडी. ठीक है? तो हमारे लिए ये डे टू डे लाइफ में यूज करता है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज द सीवेज ट्रीटमेंट प्लान. इसमें से बहुत क्वेश्चन आता है, राइट? डायरेक्ट क्वेश्चन से मिलने का चांस है, मैट्रिक्स मैच भी है. ठीक है? नाउ व्हाट इज सीवेज? इट इज द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर. ठीक है? इट इज द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, राइट? और इसका ट्रीटमेंट दो स्टेप्स में होता है, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट. एक प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट. ठीक है? What are the components that you find in a sewage? What are the components that you find in a sewage? Large undissolved particles, small undissolved particles, dissolved organic substances and harmful microbes. There are 4 specific components in a sewage. हर किसी सीवेज में आपको ये दिख जाएगा. ठीक है? Large undissolved particles, small undissolved particles, dissolved organic substances and harmful microbes. और इसको स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप इसको रिमूव करते हैं. ठीक है? राइट? इन 2 स्टेप्स, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट. व्हेन आई टॉक ऑफ द प्राइमरी ट्रीटमेंट, देयर आर 2 स्टेप्स इन्वॉल्व. ठीक है? देयर आर 2 स्टेप्स आर इन्वॉल्व. It is a physical process. It is a physical process, and there is no microbes used. Direct question है. What type of treatment is primary treatment? It is a physical treatment where no microbes is utilized. What are the 2 steps? पहला क्या है? Sequential removal of undissolved waste. जैसे आपके इस वेस्ट में, अगर आपके इस वेस्ट में आपका मिक्सचर है, अनडिजॉल्व वेस्ट का मिक्सचर है, छोटा साइज, स्मॉल साइज है, कोई बड़ा साइज है, कोई वेरी स्मॉल साइज है, इसको जब आप लेके आते हो, आप सिक्वेंशियली इसको फिल्टर से पास कराते हो. फिल्टर, किसी में लार्ज साइज गैप रहेगा. ठीक है? जो गैप साइज है वो गैप साइज है, सिक्वेंशियली वो गैप साइज क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा. सिक्वेंशियली वो गैप साइज क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा. करेक्ट है? सो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल्स ऐसे करके आपके सेपरेट होते जाएंगे. करेक्ट है? सो सिक्वेंशियली आर रिमूविंग व्हाट? सिक्वेंशियली आर रिमूविंग द अनडिसॉल्व पार्टिकल्स. द फर्स्ट स्टेप इज सिक्वेंशियल रिमूवल ऑफ अनडिसॉल्व वेस्ट. ठीक है? जब आपने उससे सिक्वेंशियली रिमूव कर दिया, द सेकेंड स्टेप इज सेडिमेंटेशन. तो आपने उस सिक्वेंशियली रिमूव वेस्ट वाटर को एक सेडिमेंटेशन टैंक में भेज दिया, राइट? एंड यू हैव केप्ट द टैंक अनडिस्टर्ब्ड. सो अनडिस्टर्ब रहने के साथ साथ क्या होता है? धीरे जो स्मॉल अनडिसॉल्व पार्टिकल्स है वो धीरे ड्यू टू ग्रेविटी बॉटम ऑफ द टैंक में सेटल होते हैं. ड्यू टू ग्रेविटी दे सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक. Right? So small undissolved waste they settle to the bottom of the tank, and this is called as the primary sludge. जो small undissolved waste है वो due to gravity धीरे bottom of the tank में आ जाता है, called as primary sludge. और ऊपर में जो सेपरेट होकर वाटर कंपोनेंट रह जाता है, that is called as a primary effluent. और यही primary effluent क्या करता है? We take it out for secondary treatment. Correct है? So the primary
treatment involves two steps. It is a physical process and no microbes are used. ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है? सीक्वेंशियल रिमूवल। एक फिल्टर वाइज फिल्टर करते करते जा रहे हो, एक स्टेप में बड़ा सेपरेट हो गया, उसके नेक्स्ट स्टेप में उससे छोटा सेपरेट हुआ, उसके नेक्स्ट स्टेप में उससे छोटा सेपरेट हुआ, ऐसे आप सीक्वेंशियली फिल्टर करते जाते हो, रह क्या जाता है? वेरी वेरी फाइन स्मॉल अनडिजॉल्व पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो उस वेस्ट वाटर को आप एक सेडिमेंटेशन टैंक में बढ़ा दिया। In the sedimentation tank, due to the gravity, small undissolved waste they settle to the bottom, which is called as primary sludge, right? And ऊपर में जो effluent रह जाता है उसको बोलते हैं primary effluent. Now this primary effluent is sent for the secondary treatment. अच्छा, अभी secondary treatment क्या है? It is a biological process, and here microbes are utilized. Physical process, no microbes used, whereas secondary treatment is a biological process जहाँ पे आपका क्या होता है? Microbes use होता है. So what are the steps? The primary effluent is first sent into the first tank, that is called as the aeration tank. ठीक है, the primary effluent is first sent into the aeration tank. Aeration tank में क्या होता है? The primary effluent is rotated and mixed with oxygen. आप primary effluent को rotate कर रहे हो और उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स कर रहे हो. What होता है? करेक्ट है, आप जितना ऑक्सीजन यूज कर रहे हो, एरोबिक डाइजेशन करने वाले बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रोड्यूस हो जाते हैं. ठीक है, right? So aerobic, what is happening in the aeration tank? Aerobic digestion of dissolved organic matter takes place. Very very important. What is happening in the aeration tank? Due to the mixture of the primary effluent with oxygen, aerobic digestion of dissolved organic matters is taking place. ठीक है, right? तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पे एरोबिक डाइजेशन हो रहा है? विद द फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक्स. आप जितना उसको रोटेट करते जाओगे आप देखोगे थोड़े 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 क्लस्टर ऑफ फ्लॉक्स बनते जा रहे हैं. ठीक है, क्लस्टर्स बन जाते हैं बैक्टीरिया फंजाई के, व्हिच आर कॉल्ड एज फ्लॉक्स. द फॉर्मेशन ऑफ मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई कॉल्ड फ्लॉक्स. वंस फ्लॉक्स आर फॉर्म्ड, फ्लॉक्स फॉर्म्ड जब हो जाते हैं, एरोबिक डाइजेशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. ठीक है, आफ्टरवर्ड इन द सेकेंड स्टेप, यही कंप्लीटेड डाइजेस्टेड वाले को हम लोग एक दूसरे टैंक में भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सेटलिंग टैंक. वी कॉल एज द सेटलिंग टैंक. अभी ये मिक्सचर वाले जिसमें फ्लॉक्स बन चुके हैं, ठीक है, इसको जब सेटलिंग टैंक में देते हैं तो अगेन ड्यू टू ग्रेविटी द फ्लॉक्स दे स्टार्ट टू सेटल एट द बॉटम. कहां पे बन जाते हैं? बॉटम में चले जाते हैं, एंड ऊपर में वाटर कंपोनेंट सेपरेट हो जाता है. अभी इस वाटर कंपोनेंट में ना लार्ज अनडिजॉल्व पार्टिकल्स हैं, ना स्मॉल अनडिजॉल्व पार्टिकल्स हैं, एंड ना डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, एंड सर्टेन हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स भी नहीं है. ठीक है, सो नाउ दिस वाटर कंपोनेंट इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी एफ्लुएंट, एंड दिस सेकेंडरी एफ्लुएंट कैन बी रिलीज्ड इनटू द वाटर. आप इसको रिलीज कर सकते हो, वेस्ट ट्रीटमेंट हो गया, या फिर अगर इसको आप रीयूटिलाइज कर सकते हो तो टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए भेज सकते हो. और जो नीचे जो आपका एक्टिवेटेड फ्लॉक्स रह गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड स्लज. ये जो सेटल्ड फ्लॉक्स अंदर में रह गया, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज. एंड दिस एक्टिवेटेड स्लज, राइट, आर यूज्ड एज इनोकुलम. इसको आप इनोकुलम की तरह यूज कर सकते हो. जैसे हम लोगों ने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में जब कर्ड बनाने के लिए यूटिलाइज किया, दैट फॉर्म्ड कर्ड वाज यूटिलाइज्ड एज एन इनोकुलम टू बी इंसर्टेड इन द फ्रेश मिल्क टू मेक न्यू कर्ड. ठीक है, सिमिलरली इसी एक्टिवेटेड स्लज को अगर आप फिर से एरेशन टैंक में दे दोगे तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द फ्लॉक्स वुड बी मच फास्टर, एंड एरोबिक डाइजेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर्स वुड बी मच हायर. ठीक है, राइट? सो दे कैन बी सेंड एज द इनोकुलम, एंड द रेस्ट are sent into the last tank, which is known as the anaerobic sludge digester. इस anaerobic sludge digester में होता क्या है? right, the activated sludge are digested anaerobically. It is digested anaerobically, और उसी anaerobic digestion की वजह से आपका मीथेन फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. दिस इज वेरी वेरी डेंजरस. ठीक है, सो मीथेन फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, राइट? और जो बाकी जो बच जाता है आफ्टर डाइजेशन, दैट इज यूटिलाइज्ड एज सच. द डाइजेस्टेड स्लज आर यूटिलाइज्ड एज फर्टिलाइजर्स. दे आर यूटिलाइज्ड एज फर्टिलाइजर्स. ठीक है, सो दिस वाज द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और दिस वाज द स्टेप्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर बिफोर म्युनिसिपल वेस्ट, बिफोर बीइंग रिलीज्ड इनटू द रिवर बॉडीज. ठीक है, इसमें और एक टर्म आपको मिल जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. इसमें एक सिंपल सा आपका
एक इक्वेशन याद रखना है कि अगर BOD हाई है द पोल्यूशन इज हाई, ठीक है। अगर वाटर में BOD हाई है दैट मीन्स वाटर में पोल्यूशन हाई है, और अगर BOD ज्यादा है तो आपका जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, आपका जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो कम होगा। व्हाट इज BOD? BOD इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोब्स टू डाइजेस्ट डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो अगर आपका डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा जो पोल्यूटेड वाटर में होता है तो माइक्रोब्स ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। अगर माइक्रोब्स ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे तो आसपास में जितना भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन नॉट कंज्यूम द ऑक्सीजन एंड दे डाई ऑफ। समझ में आया? सो हायर BOD इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पोल्यूटेड वाटर, ठीक है। तो हायर द BOD, हायर द पोल्यूशन, लोअर द डिसॉल्व ऑक्सीजन, लोअर द BOD, लोअर द पोल्यूशन एंड हायर द डिसॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। क्लियर है? ओके, वेरी गुड, राइट। सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गंगा एक्शन प्लान किया था, फिर यमुना एक्शन प्लान किया है टू सेव मेजर रिवर्स बाय प्रोमोटिंग व्हाट? प्रोमोटिंग द बिल्डिंग ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, बाय प्रोमोटिंग द बिल्डिंग ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। क्लियर है? तो ये था हम लोगों का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारा बायोगैस प्लांट, करेक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोगैस प्लांट वाज डेवलप्ड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एंड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, राइट। KVIC एंड IARI ने इसको डेवलप किया था। Now what is biogas? It is a group of gases, it is a group of gases which mainly include methane, carbon dioxide and hydrogen, ठीक है, right। जिसमें the predominant gas is methane, और methane को हम लोग utilize कर सकते हैं, ठीक है। So biogas is a group of gases which includes methane, carbon dioxide, hydrogen, in which the predominant gas is methane, in which the predominant gas क्या है? Methane है, ठीक है, right। Now very very importantly, the type of gas that is produced, it mainly depends upon what type of bacteria is utilized। समझ में आया कि नहीं आया? The type of gas that is produced in biogas, it depends upon what of the bacteria is utilized and what material is being utilized to digest it, ठीक है। बैक्टीरिया कौन से मटेरियल को डाइजेस्ट करेगा उसके ऊपर में भी ये डिपेंड करता है। सो टाइप ऑफ बैक्टीरिया, बायोगैस प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड, ठीक है, राइट। तो हम लोग क्या रहते हैं इन बायोगैस which is commonly called as the gobar gas, the bacteria used is methanogen and the raw material used is excreta of cattle which has a high cellulosic content, ठीक है। So the bacteria utilized is methanogen and the raw material is the excreta of the cattle containing high cellulosic content, clear है, ठीक है, right। So जब हम लोग excreta of the cattle लेते हैं, ठीक है, जिसमें सेलुलोजिक कंटेंट और मिथानोजन है, इसका एनारोबिक डाइजेशन होगा तो मेरे को क्या मिलेगा? मीथेन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। व्हेन आई टेक द एक्सक्रीटा ऑफ द कैटल एंड जिसमें हाई सेलुलोजिक कंडीशन प्लस आपके गट, उसके गट में ही क्या मिलता है? मीथेन मिलता है, और जब वो एनारोबिक डाइजेशन होगा तो मेरे को क्या मिलेगा? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन व्हिच आर बायोगैस एंड मीथेन इज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सिंपली आपका एक ऐसा चेंबर रहता है जिससे हम लोग इसको स्लरी को फीड करते हैं, ठीक है, जिसमें गोबर प्लस वाटर होता है, और इस चेंबर में क्या होता है? एनारोबिक डाइजेशन होता है, और गैस जो प्रोड्यूस होता है वो ऊपर जाके इट इज कलेक्टेड इनटू अ फ्लोटर जो एक आउटलेट के साथ लगा हुआ रहता है, और इसका हम लोग यूटिलाइज करते हैं लाइट, इलेक्ट्रिसिटी में, खाना पकाने में, एज ए फ्यूल। समझ में आया? क्लीन फ्यूल है, करेक्ट है, राइट। सो दिस इज द बायोगैस प्लांट, दिस इज द बायोगैस प्लांट, क्लियर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विथ हाइड्रोजन सल्फाइड कहां से मिलेगा? ह्यूमन वेस्ट से मिलेगा। व्हेन आई टॉक अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटा में अगर बोलूं, इसका अगर एनारोबिक डाइजेशन होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा, तो मेरे को क्या क्या मिलेगा? मेरे को मीथेन मिलेगा, मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, बट मेरे को हाइड्रोजन सल्फाइड भी मिलेगा which is very very harmful, so we cannot utilize this biogas। लेकिन ये उस वाले बायोगैस में जिसमें मीथेन हाईएस्ट कंसेंट्रेशन में मिलता है, फॉलोड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ बायोगैस, ठीक है। और वो बायोगैस बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? कैटल का एक्सक्रीटा चाहिए, क्लियर है, ओके, राइट।
एंड लास्टली यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट आ जाता है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स. बायो कंट्रोल्स मतलब यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट. बायोलॉजिकल मेथड से ही हम लोग प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट को यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, टू रिड्यूस, इसका क्या यूटिलाइजेशन है, रिड्यूस द रिलायंस ऑन टॉक्सिक केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स. ठीक है, कि टॉक्सिक केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स अगर हम लोग यूज करते हैं, ये अल्टीमेटली नोइंगली या फिर अननोइंगली ये ह्यूमन के अंदर में ही आके आता है, which is a major cause of cancer and all the diseases that you have today. ठीक है, फूड हैबिट्स खराब है, इसी के वजह से डिजीज होता है. प्लस ऑल्सो वी नीड टू रिमेंबर द फूड इज ऑल्सो नॉट एज दैट क्वालिटी दैट इट यूज टू बी इन आवर पेरेंट्स एंड आवर ग्रैंड पेरेंट्स टाइम. ठीक है, दैट इज मेनली बिकॉज वी रिलाई ऑन टॉक्सिक केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स इन आवर फार्मिंग. ठीक है, राइट. तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल एक ही है भाई कि आप उस पेस्ट का नेचुरल प्रेडिटर या फिर पैरासाइट लेके आओ. ठीक है, कंप्लीट इरेडिकेशन तो पॉसिबल है नहीं, देयर इज नो पॉसिबल कंप्लीट इरेडिकेशन. वो आपका केमिकल फर्टिलाइजर यूटिलाइज करके भी नहीं होता. अगर हो ही जाता तो एक ही बार यूज करना पड़ता, बार बार क्यों यूज करना पड़ता. ठीक है, सो सिंस कंप्लीट इरेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल, वी कैन मैनेज द लेवल ऑफ पेस्ट, मैनेज द लेवल ऑफ डिजीजेस. ठीक है, दैट इज नॉट इकोनॉमिकली हार्मिंग अस. करेक्ट है, राइट. फॉर एग्जांपल्स, लेडीबर्ड बीटल कंट्रोल्स एफिड, ड्रैगन फ्लाइज कंट्रोल्स मॉस्किटो. तो अगर आपके फार्म में एफिड्स का इन्फेक्शन ज्यादा है तो आप लेडीबर्ड इंट्रोड्यूस कर सकते हो, वो खा जाएंगे. ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटो कंट्रोल कर सकता है. Similarly, when we utilize a bacteria which is called as Bacillus thuringiensis, BT, these are available as dry spores in sachets. These are mixed with water and sprayed onto vulnerable plants. ठीक है, vulnerable plants. For examples, Brassicas fruit trees, Brassicaceae fruit tree. ठीक है, right? So उन वर्नेबल प्लांट्स में अगर हम लोग इसको यूज करते हैं, जब सपोज बटरफ्लाई कैटरपिलर जब इसको खाएगा, राइट, इन द एल्कलाइन गट ऑफ द लार्वे द टॉक्सिन इज रिलीज्ड एंड एक्टिवेटेड. समझ में आया कि नहीं आया. तो जब ये बटरफ्लाइज के कैटरपिलर इनको खाएंगे, स्प्रेड प्लांट के, जब प्लांट्स लीव्स को या फिर स्टेम को अगर ये च्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो इन द एल्कलाइन गट ऑफ द इंसेक्ट ये जाके एक्टिव हो जाते हैं. ठीक है, this toxin binds to the epithelial cells, create pores, causes swelling, lysis and death of the larva. समझ में आया. So it binds with the epithelial cells, creates pores, causes swelling, lysis and death of the larva. Specific Bt toxin genes introduced into plants such as Bt cotton make them resistant to insect pests. They make them resistant to insect pests. नेक्स्ट क्या आता है आपका ट्राइकोडर्मा, विच इज अ फंगस. इट इज अ फ्री लिविंग फंजाई. कॉमनली कहां पे मिलेगा आपको, रूट में मिलेगा, रूट इकोसिस्टम, राइट. इट इज अ फ्री लिविंग फंजाई विच इज कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम. इट इज द इफेक्टिव बायोकंट्रोल एजेंट्स फॉर सेवरल सॉइल बोर्न प्लांट पैथोजेंस. जो सॉइल में पैथोजेंस रहते हैं जो प्लांट के रूट्स को अफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अल्टीमेटली अगर रूट को अफेक्ट कर लिया तो एंटायर प्लांट कैन बी अफेक्टेड, तो उनको ये कंट्रोल कर सकता है. उसके बाद हम लोग एक वायरस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, बैक्यूलो वायरसेस. ठीक है, द पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स. ये वायरस अदर इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स को भी अटैक करेगा. ठीक है, मेजॉरिटी बिलोंग टू न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस. मेजॉरिटी किस में रहता है, मेजॉरिटी बिलोंग्स टू न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस. ठीक है, ये स्पीशीज स्पेसिफिक है, मतलब जिस स्पीशीज को अटैक करना है उसी के ऊपर इफेक्ट करेगा, दूसरे स्पीशीज को ये कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते. ठीक है, इट इज नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिडाइल एप्लीकेशन. देयर इज नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिश और नॉन टारगेट इंसेक्ट्स. ठीक है, एंड दस these are all desirable for integrated pest management programs, right, which helps in conserving the beneficial insects. समझ में आया कि नहीं है, क्रिएट. ठीक है, राइट. बायो फर्टिलाइजर्स अगर यूटिलाइज करो, बायो फर्टिलाइजर्स में ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी, राइट, एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी. प्लांट्स के लिए, राइट, इन केस ऑफ प्लांट्स, राइट, in case of plants the biofertilizers or the fertilizer that is there is NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. ठीक है, NPK, right. so NPK अगर आपके सॉइल में है तो आपका प्लांट्स के ग्रोथ बहुत हाई होगा. इफ दे आर इन गुड क्वांटिटी आपका प्लांट का ग्रोथ बहुत हाई होगा, राइट.
नो नेचर में लिमिटिंग हो जाता है, राइट? सो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंक्रीज द न्यूट्रिएंट क्वालिटी, स्पेसिफिकली किसका, स्पेसिफिकली नाइट्रोजन and phosphorus of the soil. This help in reducing the dependence on chemical fertilizers. This help in reducing the dependence on chemical fertilizers. ठीक है? So हम लोग इसमें बैक्टीरिया यूटिलाइज कर सकते हैं, फंजाई यूटिलाइज कर सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया सच एज बैक्टीरिया में राइजोबियम, ठीक है, symbiotic association with root nodules of leguminous plant. It is symbiotic association of root nodules of leguminous plants such as peas, beans. ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन ऑर्गेनिक फॉर्म्स, करेक्ट है? दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स, व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स. उसके बाद एजोस्पाइरिलम और एसिटोबैक्टर, दीज आर फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन द सॉइल, राइट? दे आल्सो फिक्स नाइट्रोजन एंड एनरिच द सॉइल न्यूट्रिएंट कंटेंट. ठीक है, तो राइजोबियम आ गया, symbiotic association with root nodules of leguminous plants such as peas and beans. They fix nitrogen oxygen into organic forms which can be utilized by the plants. Again, azospirillum and azotobacter, free living bacteria in the soil. They fix atmospheric nitrogen, enriching soil and nitrogen content. Clear है? ठीक है, right? So fungi में mycorrhiza पढ़ेंगे. Mycorrhiza, this is a symbiotic association between a fungi and roots of the higher plants, root of the higher plants. ठीक है, right? Fungal partner genus glomus, fungal partner genus glomus, it forms network around, ये एक नेटवर्क फॉर्म करता है, ऐसे नेटवर्क फॉर्म कर लेता है अराउंड व्हाट, अराउंड द रूट्स और विद इन द रूट्स, अराउंड द रूट्स एंड विद इन द रूट्स. ठीक है, तो प्लांट के लिए ये क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पासेस इट टू द प्लांट. ठीक है, तो ये जो फंजाई है जेनस ग्लोमस का, वो क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पासेस इट टू द प्लांट, राइट? व्हाट इज द यूटिलाइजेशन? प्लांट में फास्फोरस देने से क्या होता है, इट इंक्रीजेस द टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. समझ में आया कि नहीं आया, राइट? टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट provides resistance to root borne pathogens and overall increase in plant growth and development करता है. Lastly, cyanobacteria या फिर blue green algae, right? ये autotrophic microbes है. These are widely distributed. Examples include Anabaena, Nostoc, Oscillatoria. ठीक है, Anabaena, Nostoc, Oscillatoria है. ये क्या करते हैं? They fix atmospheric nitrogen. Again, fix atmospheric nitrogen. These are important biofertilizers, especially in paddy fields, rice, जहां पे ग्रो करता है, एंड ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल इंक्रीजिंग इट्स फर्टिलिटी. क्लियर है? ठीक है, सो दिस वाज द चैप्टर ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. ये लास्ट वाला पार्ट, ठीक है, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एवरीथिंग इज लाइन बाय लाइन, इसको पढ़ के आइए. ठीक है, कम हियर एंड अटेम्प्ट द 90 क्वेश्चंस. ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक से. थैंक यू सो मच.